हैदराबाद क्यों आए आप वापस से? You would have get settled in Germany. And in Germany, I learned so many things. वहाँ का जो system है in technology wise, I want to bring it to India and particularly Hyderabad and develop our state and country. Passionate to do service to the people here. Few of the cases which are emotionally connected you to your heart. As a challenge लेके मैं उनके नींद सीधा करा. Shoulder replacement जो है we need to do it in a very short time. And it was totally an unoperable case. I'm lucky to have the trust of the people. Hi everyone, welcome to our brand new show podcast where we are going to meet lot of known personalities. और आज हम आए हैं जर्मिंटन हॉस्पिटल्स अतापुर ब्रांच हैदराबाद where we are going to meet the chairman and managing director of Germinton Hospitals, Dr. Mir Jawad Zar Khan sir, and we are going to know कि उनकी जो जर्नी है जर्मिंटन हॉस्पिटल स्टार्ट करने की. तो चलिए डॉक्टर जार से बात करते हैं और जानेंगे कि उनकी ये स्पेशल जर्नी कितनी ख़ास है एंड जो हैदराबाद में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. Thank you for giving me this opportunity. आई मस्ट से कि आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी से बिल्ट है माशाल्लाह दैट आई हैव टू कैरी अ बुक एंड लॉट ऑफ पेपर्स विद मी. सो लेट्स बिगिन आवर पॉडकास्ट विद द क्वेश्चन कि सबसे पहले जो आपकी जर्नी है स्टार्टिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने का सपना जो है ये आपने कैरी कैसे किया एंड आपके माइंड में ये स्ट्रोक कैसे हुआ कि आपको इन फ्यूचर ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है? Basically, I'm born in doctor's family. मेरे दोनों parents doctor हैं. My father is orthopedic surgeon, so he is the senior most orthopedic surgeon. So I have been from the beginning, जैसे school और college में I have been seeing my parents the same profession. So I got a liking for it. और starting में when I was in school also I used to make bone models और circulation models जिसको मेरे 7th class में भी award मिला था. So these are the things जो शुरू से एक साइंस के तरफ मेरे को इंटरेस्ट रहा, साइंस एनाटमी. So basically when in inter also जब हमारे पास स्कूल में कॉलेज में we used to do dissections of frog या earthworm, so I was very good at it. So even in anatomy I used to like very much study with skeletons and other things. So orthopedic is like inborn in my genes बोल सकते हैं. So it is my passion basically from the beginning. क्या है कि unless you have a liking for the field you cannot do justice. Right. So I am in very fortunate कि the field we choose I like. So this is I had a passion for this field from the beginning, anatomy, science. So that is the field only I am doing. So that is what makes me very happy and by God's grace I am there in this field. So I am continuously trying to upgrade and do my best in this field. दैट्स नाइस कि आप ऑलरेडी ये फील्ड से कनेक्टेड थे सिंस योर चाइल्डहुड. एंड वन मोर थिंग, जस्ट अ स्मॉल डाउट. यूजुअली एनाटॉमी जो वर्ड आता है सो पीपल थिंक कि ये चीर फाड़ वाला काम है. एंड यू मेंशन दैट फ्रॉग्स एंड अर्थवॉर्म्स दीज आर few things where which are basics. So anatomy especially orthopedic में एक ऐसा term है and what is the specialization in it? Can you just give a brief about that? Anatomy is very closely related to orthopedics basically. That is the foundation. तो बेसिकली हमारे जो बोन्स का स्ट्रक्चर होता, जॉइंट्स का स्ट्रक्चर होता, तो दैट इज़ वेयर वी नीड टू नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़, हाउ टू डील इट. क्योंकि अल्टीमेटली अगर किसी का फ्रैक्चर हो गया तो दैट हैज़ टू बी बॉट टू परफेक्टली द सेम एनाटॉमिकल शेप. तो उसको हम जो है कितने भी पीसेस हो जान दो, तो इफ़ यू नो योर एनाटॉमी वेरी परफेक्टली तो हम उसको पॉसिबली वी कैन डू इट बेस्ट जॉब. वी नो वेयर टू फिक्स इट, हाउ टू फिक्स इट. इट्स लाइक ए carpentry anatomy or we have to combine our science with it. तो साइंटिफिक नॉलेज के साथ ऑर्थोपेडिक इज एडवांस टू द अनाटमी. सो दैट इज़ वेयर आई वाज वेरी गुड फ्रॉम द बिगनिंग. तो माय प्रोफेसर्स जो है एग्जांपल व्हेन आई स्टडीड एक फूड मॉडल पे प्रोफेसर यूज्ड टू से उनसे पहले माइज पूरा बता दिए तो कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे. तो I was extremely good. In fact, I used to treat my fellow student also anatomy. So I was good from science from the beginning, from the school period only. तो मेरा साइंस में इंटरेस्ट बहुत रहा है, मैथमेटिक्स एंड साइंस इन फैक्ट. तो वही मैं इंटर में करते हुआ देन अब आई जॉइंड MBBS. आई वाज एंड इन फैक्ट एनाटॉमी जो करना था, I had so many models, so many human skeletons I had practiced in that.
So during the my medicine stage only, I was very passionate on that. So इसको लेते हुआ then I am very fortunate to continue in orthopedic MS ortho and then go for advanced fellowship in Germany. वहाँ पे मैं वर्ल्ड के टॉप प्रोफेसर्स के साथ मैं रिसर्च और वर्क किया उनके साथ. So there also I used to do surgery is like you are bringing a thing to the anatomical position. Joint को जैसा है आपको लिगामेंट इंजरी रहने दो या जॉइंट की आर्थराइटिस रहने दो, उसको हम एज मच एज पॉसिबल वी हैव टू ब्रिंग इट टू द नेचुरल पोजीशन, मेक इट द इट्स लाइक साइंस, लाइक एक कार है आपकी, कितना अच्छी इसकी इंजन आप बना सकते हैं. तो दैट इज़ हाउ ह्यूमन बॉडी को, जहाँ तक मेरा आर्थोपेडिक का सवाल है, तो जॉइंट रिप्लेसमेंट भी मैं जो है उसको उतनी बेहतरीन तरीके से करता हूँ कि 25 मिनट्स रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी है मेरे पास अभी. तो दिस हैज़ टू बी डन इन एक्सट्रीम एक्यूरेसी एंड दैट शुड बी द पेशेंट. जब उसको लिगामेंट बैलेंसिंग इतनी एक्यूरेसी हो गई जॉइंट में, तो दैट patient can walk immediately, so that he can in fact run. Ligament injury, most of my patients or youngsters, they go for sports very early, so I brought it to the anatomical position, what exactly how it should be. So this is what is my aim, to bring to the natural anatomy. So orthopedic is nothing but bringing to your body back to the normal and make it as natural as possible. Great thought of you, because orthopedic is a vast study and you have explained it in very short term. Okay, it's a natural thing to get it back into the naturistic stuff. So here one more question I want to add on is, I am very interested to know, usually what we people, not only me, but there are a lot of youngsters who prefer to not to study in Hyderabad but to move abroad and get settled. बट ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप जर्मनी में माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ के यू केम बैक टू हैदराबाद? हैदराबाद क्यों आए आप वापस से? यू वुड हैव गेट सेटल इन जर्मनी. Basically, German technology I got to know. German, I researched in everything, and in Germany I learned so many things. Like why I used to do 12 knee replacement per day in Germनी. तो मेरा वो शेड्यूल वैसे रहता था, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जस्ट सर्जरीज करना. तो एवरी हाफ एन आवर इज टू डू इन मल्टीपल थिएटर सर्जरीज, जस्ट नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स. वो भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर्स थे मेरे इंस्टीट्यूट पे. So they are one of the top biggest professors in Europe. So I was fortunate by God's grace working with them. तो उनके साथ मेरा काफ़ी लर्न किया मैं वहाँ पे. तो बेसिकली वहाँ का जो सिस्टम है, द प्रोटोकॉल्स, हॉस्पिटल सिस्टम्स है, वो टेक्नोलॉजी है, I want to bring it to India and particularly Hyderabad and develop our country, our state and country. Reason is we have seen that we are lacking behind. इंडिया में क्या है इन टेक्नोलॉजी वाइज, मनी वाइज, नो डाउट आवर वी आर एज डॉक्टर्स इन इंडिया आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वी आर वेरी बेस्ट एट स्किल्स. वी नीड द राइट अपॉर्चुनिटी. अब जैसा मेरी ट्रेनिंग उस्मानिया में भी ऑल्सो आई वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम उस्मानिया हॉस्पिटल पे भी. तो आई यूज टू सी लॉट ऑफ पेशेंट्स देयर ट्रॉमा. बट जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है, बिकॉज इंडिया में अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट अवेयरनेस कम है. तो जर्मनी और यूएस में ज़्यादा है, यूरोपियन. सो दैट्स द रीज़न आई वेंट टू जर्मनी फॉर लर्निंग जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड आर्थरोस्कोपीज. तो ये चीज़ यहाँ पे जो लैगिंग है, वांट टू ब्रिंग इट बैक हियर एंड डेवलप आवर कंट्री ऑल्सो, कॉन्ट्रीब्यूट टू आवर कंट्री and do something for it and make it a global destination. Like we have that scope. What I have seen is Hyderabad as well as India now we are at a position where we can really become international global health care destination. So lot of patients, jo African and even GCC countries, even patients from UK, they preferring to come to India rather than going. So most of the year hospitals, we are getting a lot of international patients. So we have a huge potential there to become a global health destination and contribute to the development of our country. So this is one of the primary reasons I want to do. And other thing is to bringing this technology. हम इसको कई लोग आई हैव सीन देयर इज अ लॉट ऑफ गैप इन द सिस्टम. यानी पीपल प्रीवियसली नी रिप्लेसमेंट कराने डर रहे थे. लॉट ऑफ पेशेंट्स हैज फेलियर्स इन नी रिप्लेसमेंट. आर्थरोस्कोपी भी रिसेंटली पीपल आर understanding why they should do. So there are a lot of gap and lot of population is there who can really avail this, right? So this gap I want to fill up and bring this technology. So इसके intentions वो है, make this technology and also give it at affordable cost to others, world class technology. At the same time, I have this to develop our country and that is the main primary game. And definitely there is a lot of potential also in this
as far as India becoming, Hyderabad becoming global healthcare destination, there's very lot of potential there. In that. That was the primary thing to, learn technology from Germany and get it Yeah, done for the the people thing of is we need Hyderabad. to do, I'm more passionate to do service to the people here rather than more than earning. Like I'm more passionate to do something for a country, for the people and do them something, service. So, वो मेरा reason है. I'm not like I'm brought up in a family, a well-to-do family with, we have seen my parents. So we are not like going after everything like money, but main is to do service to the people and get satisfaction out of more than is satisfaction. So what you are doing, like the satisfaction which I can get here in India में अगर मैं किसी को अच्छा करा, technology लाया, the kind of feeling, kind of gratitude they have when I see their smile on their faces, right? How they are been miraculously were able to walk when they are not able to walk. There are certain cases I will tell you which are totally not possible to operate. I have done here and made them walk. So this gives me immense satisfaction. इससे क्या है? That kind of satisfaction I may not get in Germany. Okay, so that is what gives me more satisfaction. So, जैसे आपने अभी mention किया है your cases where people stand and walk. So I want to know a few of the cases which are emotionally connected to your heart, where you feel कि शायद ये case operate करने में भी मुश्किल था, and till date it's very emotional to your heart and it's very close to your heart. Some cases that you have operated in these years. Yeah, so I have a lot of patients who are almost become like family to me. Therefore, from almost I am practicing from 26 years. देखा गया तो from with my father's time 26 years 2000 से मेरी practice है देखो तो. So every day I see a lot of patients. Even today, every day I see यहाँ भी अभी every 100 above patients आते हैं मेरे को. Sometime 150 morning to evening. There are a lot of surgeries. So there are so many people who are like well connected with me. So they are like emotional connection, जो bond होता. This is a very important thing, trust factor for a doctor. कि अभी मेरे patients अभी from मेरे वालिद साहब के ज़माने से, you don't believe 45 years पहले देखे तो उनकी family, उनके children, grandchildren still come to us like that. Why this they come is they come even though they might have settled abroad, they might have settled in different parts of the city, still they come from so much far to me, or that patient. Reason is this is a legacy from my father, like he has been treating. I am treating from 26 years. So this kind of trust उनमें जो developed है, that is the most important thing. इसमें थोड़े unique cases I do remember कई patients है. Example, one of the patient है, he was totally not able to walk. Like he came all the way from Bangalore. From उनके नी इतने टेढ़े कि nobody told that can be done, operated. And he was not able to go to function, घर में बैठ के रहना है. He's a very relatively young, like 55 years में completely gross bowing बोलते हैं इसको. So we have video of that patient. तो उनको possible नहीं था even to bigger hospitals. So as a challenge लेके मैं उनके नी सीधा करा. This happened almost इनको करके भी 7 साल हो गया मेरे को. Now he is able to walk comfortably 10 kilometers. So he has a lot of gratitude from them, and I really feel very happy and satisfied in doing that job. So ऐसे हमने we have done a reverse shoulder arthroplasty, 86 years patient जिसको moment severe pain था shoulder में, and she had multiple comorbidities and a heart condition अच्छा नहीं था, and ये shoulder replacement जो है we need to do it in a very short time, extremely short time. जैसा एनेस्थीसिया टाइम हम नहीं बढ़ा सकते, तो नॉर्मल शोल्डर रिप्लेसमेंट 1.5 घंटे या 2 आवर्स भी ले सकता. सो वी एंड देन शी इज सफरिंग वेरी एक्सट्रीमली फॉर सीवियर पेन, एंड उनके चिल्ड्रन वगैरह ऑल्सो वांटेड द सर्जरी. तो दिस शोल्डर देन आई डिड द कस्टमाइज शोल्डर फॉर, यानी हम इसको बाहर यूएस में पूरा शोल्डर का मेजरमेंट इंक्लूडिंग स्क्रू लेंथ तक पूरा मेजर करके उसको 3D मॉडल पे हम प्रैक्टिस करके फिर वो शोल्डर को हमने जस्ट 20 मिनट्स में मैं किया है. दिस इज़ अ रिकॉर्ड, एंड दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ वर्चुअल इम्प्लांट पोजिशनिंग शोल्डर डन इन एंटायर तेलंगाना by Arthrex company, and we have given a press release also that time. This happened last year. So this is a very unique surgery we have done, and she became very pain free after that and able to move her shoulder normally. So yeah, that's it. So that needs a very short time. So these are the, then another moment when there was another patient coming
from a far off. Like she had a hip fracture and they come from a remote village of Karnataka something. वहाँ से आए वो लोग कहीं हो रहा नहीं कर्नाटका तो it was a very hip joint दो तीन बार ऑपरेट हो चुके थे hip joint and it was totally an unoperable case. So this kind she was not walking. She was 60 years. So they brought me here. Somebody told them that I'm good at complex surgeries. So that patient also I made her walk and they are so happy and emotionally connected. वो लोग उतनी दूर से फिर मेरे को वहाँ के उनके डिस्ट्रिक्ट के नारियल वगैरह ला के दिए सो इट इज़ द इमोशनली वो छोटी चीज़ है नारियल बट वो दिल से ला के हैप्पी दिए तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि चलो मैं इनको चला सके सो दे हैड ए वेरी इमोशनली उनके आइस में आंसू आके दे गॉट वेरी इमोशनली so this kind of things जो है that gives us a lot of to a doctor ये बहुत important है हमें rather than any earning or anything like that. So that gives immense satisfaction and happiness to me. So that means you'll feel happy that at least you I made could do someone. something positive, yeah. ऐसे पेशेंट्स को अब यंगस्टर्स एंड ओल्ड पेशेंट एक फ्रैक्चर के बाद फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आई मेक देम वॉक वो एकदम खुश होके चलते एंड दे हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड के आई कुड मेक देम वॉक लाइक दैट I think this is a feeling like एक Yeah, 6 महीने के बच्चे को चलना सिखाना. correct, yes, Right? It's yes, kind of that yes, feeling. yes, yes. And I've heard of one of the case of yours where 12 years की एक लड़के को आपने ऑपरेट किया था toe to thumb वाला Correct, case, correct, right? yes. So would you tell something about that case? Yeah, this is also a very unique surgery. तो ये जो लड़का था 12 years, he got completely उसका थंब जो है ये अंगूठा पूरा चले गया था ड्यू टू क्रश इंजरी एक्सीडेंट से. तो थंब को हम जो है देन थंब इज द मेन थिंग इफ यू आर सीइंग उससे जो है इफ यू होल्ड सम ग्लास राइट थंब इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. तो ही वाज 12 years ओनली एंड हिज होल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दैट. सो इसको हम नीचे जो हमारा अंगूठा होता फुट का अंगूठे को हम इधर ट्रांसफ़र करके 18 आवर सर्जरी थी है. तो इसको हम थंब डाल के इसको पूरा फिर से अंगूठे को इधर थंब के जैसा इम्प्लांट कर दिए पूरा एंड ये सक्सेसफुल हुआ ऑलमोस्ट ये करके हमारे को 1 year हो गया. कई सर्जरीज लाइक दैट वे अटेम्प्टेड इन इंडिया बट only few maybe 2 or 3 were successful. Telangana में it was the first surgery to be successful like that. So this is made possible by my team, myself, my hand surgeon, plastic surgeon, anesthesia team. तो हम सब मिलके इसको हाई एंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करें हम इसका और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स वेरी हाई एंड माइक्रोस्कोप विद ए हैंड टीम एंड माइक्रोस्कोप. दिस इज फ्रॉम जर्मनी which I got here and we are done with a very good hand surgeon, plastic surgeon, almost a 6-member team के साथ हम इसको successful करे थे and this is one of the biggest achievement we also got here. So that means we nowadays we can do hand transplant completely जो possible नहीं था toe transfer finger transplant कर सकते. That kind of facility is available with us in Germantown now. It's really great कि इतनी complicated cases are from Telangana and I think we are proud to have you as a service provider for us so that कभी कोई orthopedic problem हो तो we know where we have to come. Yeah, I'm lucky to have the trust of the people and always मेरा यही रहता है कि trust is the main thing then technology and we should always as a doctor you should always keep yourself आपको upgrade करते रहना पड़ता. So that's the reason we are invested heavily in robotics here. Germantown has very advanced technological systems, robotic technologies, high-end operation theaters हमारे यहाँ पे almost 8 operation theaters are fully laminar, and we are having high-end microscopes जैसा मैं कहा hand के लिए, and then we are having arthroscope systems for the sports injuries. Even हम cartilage transplant के लिए we are counted as the #1 hospital now. There's a chondrophilia and cartilage if you search. So pan India, we are ranking top in that also. Nice. And one more thing I got to know from my research is that there was a survey in 2022 from Times of India where your Germantown hospitals have been ranked as top 20 in India, top 10 in South India, and top 3 in Hyderabad, and which is still date with the same ranking. So what would you say about that? Yeah, I'm proud to say that we are consequently last 2 to 3 years we are coming as top 3 in Hyderabad, top 10 in South India, and top 20 as orthopedic hospital by Times ranking survey. So and inshallah we are hoping to gain the top
number one position by coming here as a pan-India best orthopedic hospital. So apart from that, we are multi-specialty, but this is our core specialty. Orthopedic is the core Core, specialty. but we are having cardiology, nephrology, dialysis, and all are very senior doctors. Germantown Hospital, I think you are the first generation for this. You are the one who built this entire empire of Germantown. So the term Germantown, what does it actually mean? Actually, since I worked for a long time in Germany, so we have incorporated यहाँ पे कई टेक्नोलॉजीज जर्मनी के मैं लेके आया था. तो एक कांस्टेंट रिसर्च कोलैबोरेशन भी है हमारा जर्मनी से. आई गो देयर every year. They come here, German team. So now coming months, I'm planning a big Robocon kind of conference with them, with my German team and Indian doctors. So ये constant research जो है, that motivated me to name the hospital with Germany. Why? Because of my past experience there. So also the German and the 10 जो है, 10 is means no compromise in clinical excellence. Clinical excellence human body पे हम जब सर्जरी करते या कुछ करते तो we cannot compromise anything. In infection, that's the reason we are having strict infection control protocols and everything जब हम plan करते हैं यहाँ पे surgery, either knee replacement, arthroscopy, spine, hand or anything. So we do a very thorough planning and I have a very big team for it here, different departments. So the clinical excellence we cannot be compromised. So that is the reason it is 10 by 10 should be there. So Germantown is coined in the sense that there is no compromise in clinical excellence. So this is also the things like technology which we are having from Germany. So the German and 10 combined is that. That's a very great logic, I must say, behind the name. And also, one more thing is that you have been awarded by our 14th president, Mr. Shri Ramnath Kovind sir. So, the title was Champions of the Change. So, I would like to know what kind of change you have been thought in your mind, and when you have been awarded by the title, how was your experience holding that in your hand? No, I was very proud and happy to receive it, and I thank my parents. Even in fact, my parents came with me to Delhi to receive to Rashtrapati Bhavan for the award. So I wanted them to feel very proud of me more than it is their hard work. Ultimately, अब माँ बाप के बगैर तो हम कुछ नहीं है. So their support from the beginning, from the schooling, they supported, always encouraged me. So they were there when I'm taking, and the kind of feeling and happiness I can see in their eyes is that what gives a satisfaction. So उससे ज़्यादा happiness नहीं रहता. So that and I'm really happy and proud to make my parents proud and my people of Hyderabad, Telangana proud by getting the award. So this is based upon my clinical experience, my orthopedic research and orthopedic what are the achievements I've done. Basically, my service during COVID was also there. So during the COVID lockdown, we are the only hospital which was open doing fracture surgeries. तो उसके लिए हम बहुत कई प्रिकॉशंस लेके स्पेस सूट टाइप हेलमेट्स पहन के हम ऑपरेट करे थे, रिस्किंग आवर लाइव्स एंड वी हैव डन लॉट ऑफ सर्जरी. वी नेवर स्टॉप ड्यूरिंग कोविड पीरियड. So many fracture patients were refused by most of the hospitals here. So nobody, but because if you don't operate a fracture, the complications, many people died out of it, like fat embolism, say. So I'm really, I thank God and fortunate that I could save a lot of people that time. When orthopedic के अलावा we were also given lot of COVID patients को हम treat करे थे. तो orthopedic wise तो हम कई we were never stopped operating or seeing patients. I never stopped seeing patients in COVID. I was using glass chambers and all that things. So this is a very big sir. I think I'm fortunate to give that kind of service to our people. So you have been also awarded by the iconic replacement joint replacement surgeon of Telangana. So इतने सारे awards आपको मिले हैं for joint replacement and also orthopedic related से. So how do you feel कि being one of the best joint replacement surgeon of Telangana? Say I'm really happy and proud and a lot of contribution from my team. जो मेरे team है, मेरी orthopedic team है और जो staff है, everywhere they were very supporting and dedicated, right? तो उनके साथ like I'm constantly trying to give the best जो भी है orthopedics में, because I am an orthopedic surgeon, but the overall Germantown hospital is committed to give best service in every field like cardiology. We have very senior cardiologists, nephrologists, physicians here, ICU care.
So I feel ऐसी है कि constantly we have to strive and give them the best service. So when I receive any award, definitely it makes me more committed. यानी if I get some award, I feel like I should do more. यानी it makes me more responsible to the society. ये मेरे को और भी इसमें बेस्ट करना चाहिए. तो इसके जर्नी है ये. एंड वॉट एवर मैं जो ट्रीट कर रहा हूँ दैट इज़ दैट व्हाट इज़ द वो तो आई एम जस्ट इंस्ट्रूमेंट. अल्लाह मियाँ के हाथ में इंस्ट्रूमेंट है. तो गॉड या अल्लाह मियाँ के हाथ में हम क्या है, जो अल्लाह करा रहा वो हम कर रहे हैं. यानी सम काम हमारे से ले रहा है सर्विस के. मेरा मोटो इज़ जस्ट टू डू गुड सर्विस एंड अपग्रेड टेक्नोलॉजी. वी हैव टू बिकम इंटरनेशनली बेस्ट सेंटर एंड इसको हम लोगों तक पहुंचाए और उनको अफोर्डेबल कॉस्ट पे करें. अवार्ड्स एंड ऑल कीप कमिंग. इट्स लाइक ए जर्नी that makes me more what you call more dedicated and more motivates me to do more better like that. Now, let's take a question related to your personal life. आप एक चेयरमैन हैं जर्मनटन हॉस्पिटल्स के. ऑल्सो यू आर अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑल्सो अ फैमिली मैन. So how do you balance all these things? Because it sounds really hectic being a chairman, obviously, and again a consultant orthopedic surgeon. You have to give time to your business. Again, you have to give time to your patients. Also, you have to give time to your family. So how do you balance all these three? So this is like a full-time job. It's a very definitely बगैर हार्ड वर्क करे कुछ नहीं आता. So you have to be motivated. You have to have that passion first of all. अगर आपको passion नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते. Commitment. You have to have constancy. And that is where I'm constantly doing hard work. इसके साथ this has been gradually built. Germantown. It was initially started with a small hospital. Like I was here also working previously. मेरा hospital 10-20 bed hospital था, which was my father's hospital. Hermitage. From there I shifted here, and then I started with one block, then attached one more block, and then another block. We are expanding into branches. This is like a journey, but this all is possible not only by my hard work, but the कई लोगों की दुआ है, well wishers है, कई लोगों की जो है there are so many people who really अपनी दिल से लोग जो है दुआ देते. दैट यू सी अनलेस यू डू समथिंग गुड फॉर द पीपल. यानी हॉस्पिटल नो डाउट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, वी एग्री, बट एट द सेम टाइम हम जर्मनटन में हमेशा 10 or 20% लोगों को हम चैरिटी टाइप वी डू देम फ्री ऑफ कॉस्ट. दिस वी डोंट टेल, बट कई लोगों की हमारे को दुआ है, तो उनके वेल विशर्स की है. तो इन लोगों के दैट इज़ द वेयर मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ए वेरी फास्ट ग्रोथ वी हैव बिकॉज ऑफ दुआ ऑफ लॉट ऑफ पीपल. So the kind of service I'm telling, many people may not come in media and tell frankly. तो सोशल मीडिया को भी कनेक्ट नहीं रहते वो लोग कि what I have done for them, and I don't want to tell them what I have done because this is what shows in the result. The God अब अल्लाह मियाँ उसकी वो दुआ के हिसाब से नवाजता बोलते. So that is where I am growing and I want to. और हमारा कमिटमेंट हमारा फेयर रहता. वॉट एवर इज वी आर वेरी स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर सिस्टम है हमारा. नथिंग लाइक हम इधर हाइड करते. इवन दिस इज़ द ओनली हॉस्पिटल मैं समझता हूँ आईसीयू में भी हम पेशेंट को दूसरे डॉक्टर को बुला के चेक कर लो बोलते हैं अगर हमारा ट्रीटमेंट सही है नहीं है. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड जो भी डॉक्टर्स आई हैव चूजन हियर दे आर ऑल्सो वेरी ट्रूथफुल एंड सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स आर देयर. एट द सेम टाइम बगैर टीम के आप काम नहीं कर सकते. तो वी हैव ए वेरी गुड टीम ऑफ डॉक्टर्स हियर. And main thing is management. I have a very good medical director, very good CEOs. Even my family members are supporting, my sisters, brothers, even my very close friends. There are a lot of people who are there who are supporting me. It is their hard work. It's a teamwork. So they are managing very well. So the team which is there in Germantown is a very committed team. And it is their hard works and efforts which they are doing, which will growing. So as a chairman, मेरा क्या है, have a constant meeting with them, have critical decisions. My primary job is to see the patients here. यानी उनको मैं सर्जरीज करना मेरा काम है. तो lot of surgeries I do every day here. So the growth is by the team and looking after them nicely because they should be motivated and we are very motivated team, hard working जो अपनी feeling समझते हैं. Germantown is like the family. So that is what we are lucky to have such a team here. And मे बी अब अल्लाह मियाँ हम की भी जो है कि शफा बोलते हैं आई डोंट नो बट लॉट ऑफ पेशेंट से आई डू मेरे पास आके ठीक होते. तो दिस आई फील वेरी फॉर्चुनेट कि कई लोगों की दुआ है, माँ बाप की दुआ, वेल विशर्स की है कि अगर वैसा हो रहा तो बहुत अच्छी चीज़ है.
ये बहुत ही सही बात कही है आपने, दैट व्हेन यू प्रोवाइड समथिंग टू अ नीडफुल, देन उनकी दुआएं ही हमारे साथ आती हैं एंड हमारे ग्रोथ में उनका ही बहुत ज़्यादा एक रोल होता है। सो एक और एक चीज़ ये है कि जब बिजी शेड्यूल में आप जब बिजी होते हैं, कॉट अप होते हैं, तो देर आर टू पीपल who tend to sacrifice either that or they tend to disturb you. They are wife and kids. So in this busy schedule, how does your wife and your kids support you? Because कभी कभी हम ये देखते हैं कि whenever we are busy, तो कॉल आता है कि कब तक आ रहे घर, कब तक आ रहे, एंड देन देयर आर किड्स डिस्टर्बिंग यू, डैडी कब आ रहे घर, हमें बाहर लेकर जाओ, हमें यहाँ लेकर जाओ. सो हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस एंड व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू गेट फ्रॉम देम? Definitely, my wife is a gynecologist and is very supportive. My children are still younger, but they are also school जाते. So basically, my जो है I divide my time like it's Sunday I keep for family exclusively. In the evenings है जैसा OP के बाद I try to spend time with them. जब भी time मिले I try to spend and give the time. But definitely doctor profession is we need to sacrifice a lot of like sometimes बच्चे बोलते हैं बाबा आप मत जाओ हॉस्पिटल बट वी कैन नॉट डू पेशेंट्स वेट करते रहते हैं सैक्रिफाइस तो करना पड़ता फैमिली लाइफ को बट एट द सेम टाइम इस नीड है कि वी हैव टू गिव टाइम टू द फैमिली व्हेन इमरजेंसी टीम है हमारी वेरी कुछ है तो अदरवाइज संडे आई गिव एंटायरली टू द फैमिली लाइक so wherever I try to take out time, I try to take out time. So one thing is for all this to happen, we need a big team also. जैसा I have a good lot of team of management team है मेरे पास. Lot of Germantown here has almost 400-500 staff. Out of that nursing head, managers, lot of from medical director, CEO, CFOs, lot of people are. It's a well-established corporate system है. So this is the kind of decisions many things they take from my side and main things is that so we have a dedicated team रहना बहुत ज़रूरी है. So at the same time I need to have a correct decision making like guiding them correctly. So everything I believe should be very fair. Like we have everything is on record like हमारी बिल्डिंग से लेके in the software systems. So we are the one we are last के आने में आप देखें so we kept everything fair in Germantown. Everybody know even the treatment which is going on. Everybody know what treatment we उनको हम explain भी करते हैं आप क्या complications हो सकते हैं सर्जरी के ICU में आप क्या हो सकते हैं. Even you can take opinion from other doctors and decide. So that option also we give. So there are so many things which matter in this. So that means आपके absence में you have a very good team behind you who is going to take care of all the. Yeah, management team is there. Where without management team and all, it's not possible to run a corporate hospitals. Okay, this organogram बोलते हैं वो बहुत important है. One more thing is that कि इतनी busy schedule में when you just go on a vacation with your family like weekends पे या on Sundays, getting a break from your work life, how does that feel? That is the only one thing I feel I should become somewhere software engineer. Why? Because वो लोग they can work from anywhere. Right. Recently, one of my school friend, a software engineer है, he is going to 1 month to Europe जाके he is working from there only with family. So some professions have those advantages, but unfortunately, doctor profession who commit we have to be with the patients. I cannot take bigger breaks. Right. So I have to be available. That's the thing. That is that's the reason we have to do some sacrifices. But it's a passion. I do enjoy my profession. Na? So I like seeing patients, doing surgery. So this is also makes me happy. And only on Sundays you are a software engineer in your mind. We have to think like that. So again, then coming towards your family, mom and dad, यू आपने भी मेंशन किया है कि आपके फादर भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है. सो बचपन में जब आप आपके फादर को देखते थे व्हेन ही यूज्ड टू अटेंड पेशेंट्स एंड ऑल, व्हाट वाज दैट वन लेसन दैट योर फादर टॉट यू दैट टिल डेट वो आपके साथ एक मोटिवेशन की तरह व्हेनेवर यू फील लो और व्हेनेवर यू फील कि कोई केस बहुत हार्ड है, सो दैट वन सेइंग ऑफ योर फादर दैट स्टिल स्ट्राइक्स योर माइंड एंड इट मोटिवेट्स यू? Yeah, my father, Dr. Amanullah Khan's name. So he was working in NIMS actually with Dr. Ranga Reddy, was a father of orthopedic bolte. So he has been doing lot of surgeries at NIMS hospital that time, 70s में. And he has done polio के बहुत expert है वो, cerebral palsy, polio, complicated cases. And he devotes lot of time to correct any kind of complicated case. That is one thing I learned. He takes it as a challenge to do it. Like recently
मेरे ओन इफ यू से मेरे ओन मामी जिसको फ्रैक्चर शी गॉट ए सिवियर गैंग्रीन ऑफ द लेग एंड many surgeons told वो amputation के अलावा कुछ नहीं कर सकते उसको because it has become dead and that my father took as a challenge and he has वो limb को survive करा सके वो यानी by taking so much care dressing this nowadays अब ऐसा हो गया आजकल और डॉक्टर्स का प्रोफेशन में they don't want to spend that much time with patient ठीक है so previous now saving some kind of limb or anything some of the cases needs lot of time of a doctor अब जब उसके लिए डॉक्टर्स को आवर्स टुगेदर देना पड़ता पेशेंट के साथ तो माय फादर डज के ही हैज गिवन दैट मच टाइम ही गिव्स एंड मेक्स दैट पॉसिबल के जैसा सेरेब्रल पॉलिसी एंड ऑल सो दिस काइंड ऑफ थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम जो तरीके से पेशेंट को चैलेंज से लेना है सर्जरी को तो आई लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम हिम फ्रॉम 26 years I was operating him assisted from my early days so that I'm really fortunate to learn he's one of the best surgeons in what you call as complicated cases like polio, cerebral palsy. जो it's a very complicated. NIMS में पहले वही था. NIMS hospital was known as a orthopedic if you know. Go back to history. So that time NIMS hospital में जो डॉक्टर रंगारेड्डी थे उनके प्राइमरी असिस्टेंट थे मेरे फादर He was working with him and done lot of cases that time. So I learned lot of from my father. आपके फादर को प्रैक्टिकल करते हुए the way he used to manage things, you learned it from him. अब यहाँ पे आपकी जर्मनी के एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें सो यू हैव डन 20,000 प्लस सर्जरीज The other thing I am fortunate to learn with the top experts in Germany जैसा Professor Wessels, Martinez, there are so many names I can say. They are one of the top in Germany. Like they do very complicated cases in Germany. Like I have a hip replacement surgery. I remember one lady in Germany. ऐसा है कि at 90 years also they want to get operated. They want to get operated and be mobile. That is the mentality of the people there. जैसा अपने पास अगर 60 years में भी कुछ नी पूरा है तो अभी दे डोंट छोड़ दो अब हम व्हील चेयर पे चला इट्स नॉट लाइक दैट वहाँ पे क्या है 90 years में भी दे वांट टू ट्रैवल दे वांट टू साइकिलिंग करना चाहते सो वन वहाँ पे जो है I did a 85 years lady Italian lady she was operated 5 times in hip and it got failed सो आई डिड विथ माई प्रोफेसर कि हम उसको पूरा कंपनी का इम्प्लांट्स बुला के वहीं हम डिज़ाइन करें जर्मनी में एंड पूरे थिएटर में उसका 3D का पिक्चर्स डाल के वी डिज़ाइंड ड्यूरिंग द सर्जरी क्या होना स्क्रू उतना फास्ट करके हम उसको सक्सेसफुल सर्जरी करें सो दिस इज़ ए वेरी एडवांस सर्जरीज लाइक दैट मैं जर्मनी में मेरे प्रोफेसर्स के साथ ट्रेनिंग लेके किया हूँ सो दिस इज़ वेयर आई फील वेरी फॉर्चुनेट एंड learned from lot of top surgeons there, not only hip, knee replacements, arthroscopies. So this kind of surgeries have benefited me the maximum. तो जर्मनटन हॉस्पिटल्स स्टार्ट जब हुआ था तब से लेकर आज जो पोजीशन पे है इसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है उस बारे में आप हमें कुछ बताइए जर्मनटन जैसा मैं जर्मनी से रिटर्न होकर स्टार्ट किया था बिफोर दैट मेरा दूसरा हॉस्पिटल था तापुर पे जो मेरे वालिद साहब का था या पेरेंट्स का तो दैट वाज ए 20 बेड देन जैसा मैं जर्मनी से आया इन दैट स्मॉलर सेटअप ऑल्सो मैं नी रिप्लेसमेंट्स के लिए मेरे पेशेंट्स जो है कहीं दूर से आके करा रहे थे बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस एंड ट्रस्ट सो इफ आई से नॉट ओनली पेशेंट्स from all the population not only I have patients Muslims non-Muslims everything even if you see मैं जब छोटे हॉस्पिटल में कर रहा था इससे पहले जर्मन वहाँ पे भी मैं कई पेशेंट्स मेरे दूर दूर से आते इफ़ ऐसे इफ मलकाजगिरी के एक मंदिर के पुजारी his wife got operated by me leaving so many hospitals in their smaller setup ठीक है तो मतलब नॉट ओनली मुस्लिम्स नॉन बल्कि कई नॉन मुस्लिम पेशेंट्स हैव लॉट ऑफ ट्रस्ट इन मी तो मेडिकल प्रोफेशन जो है पूरे कम्युनिटीज़ को करना है विद द सेम पैशन तो मेरे पेशेंट्स जब उतना ट्रस्ट बता रहे 20 बेड एंड दे आर गेटिंग एक्सेलेंट रिजल्ट्स आई वाज डूइंग इन दैट ये मेरे को कॉन्फिडेंस दिलाया कि इफ़ आई गो फॉर ए बिगर फैसिलिटी तो आई कैन डू मोर बेटर वे आईसीयू केयर और पूरा क्योंकि ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए आईसीयू केयर होना ज़रूरी है विदाउट दैट यू कैन नॉट डू ऑर्थोपेडिक के अलावा इफ़ यू अगर आपके पेरेंट्स है इफ़ योर मदर वांट्स टू अंडरगो ए नी रिप्लेसमेंट या समबडी से माय मदर और एनीबडी वांट्स टू गो नी रिप्लेसमेंट आई विल नेवर टेक टू ए हॉस्पिटल विच इज़ ओनली ऑर्थोपेडिक के साथ उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं है रीज़न इज़ इन ए स्मॉलर एक छोटे बच्चे को भी फ्रैक्चर हो जान दो अगर उनको करना है तो द हॉस्पिटल शुड हैव
कंप्लीट कार्डियोलॉजी बैकअप 24 आवर्स, आईसीयू बैकअप, पल्मोनोलॉजी बैकअप और नेफ्रो बैकअप। इवन कोविड के बाद अभी क्या है, लंग प्रॉब्लम्स बहुत है, लॉट ऑफ पेशेंट्स आर हैविंग लंग प्रॉब्लम। तो कोसे पेशेंट को आफ्टर सर्जरी एनेस्थीसिया के बाद लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, हम नहीं बोल सकते। तो एनी सर्जरी अगर करना है तो वी नीड ए बिगर सेटअप। तो जब मैं छोटे हॉस्पिटल में करा तो ये सब चैलेंजेस मैं फेस करा कि मेरे को उनको शिफ्ट करना पड़ा बड़े हॉस्पिटलों में। तो मैं बोला इफ़ द पेशेंट्स मेरे पे इतने ट्रस्ट से आ रहे तो मेरे को मल्टी स्पेशलिटी पे रखना ज़रूरी है ऑर्थोपेडिक के साथ। तो वो रीज़न से मैं जर्मनटन को इधर एज ए मल्टी स्पेशलिटी आई एस्टैब्लिश्ड एंड विथ NABH प्रोटोकॉल्स। तो इधर में हमारे पास वेरी एडवांस कैथ लैब है जापानीज, और हमारे पास अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, जैसा डॉक्टर वासिफ आजम है, आप जानते हैं, उन्होंने भी 30 ईयर्स के, डॉक्टर जाहिद बोल के ज्वाइन हुए, ऐसे ही डॉक्टर शबाना नेफ्रोलॉजिस्ट है। एंड वी आर हैविंग वेरी गुड फिजिशियन एंड न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर प्रियंका निवेदिता। सो मेनी डॉक्टर्स हैं हमारे पास, आईसीयू टीम है डॉक्टर, तो वेरी बिग एक्सेलेंट आईसीयू टीम और ER टीम हमारे पास है। तो मेरे पास ये फैसिलिटी रहने से मैं जो है 90 ईयर्स रिसेंटली 90 ईयर्स टू 95 ईयर्स मैं समझता हूँ हिप रिप्लेसमेंट पेशेंट को हम हिप रिप्लेसमेंट करें इधर। व्हेन द हिप बॉल फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर बोलते हैं हम, अगर वो कोई भी एज में हो गया, ओल्ड एज में होता तो चलने नहीं आता, पॉसिबल नहीं रहता, पेशेंट बेड रिडन हो जाके 2-3 महीनों में दे गेट एक्सपायर्ड। तो उनको लिमिनिंग लाइफ जीना है तो दे नीड टू अंडरगो, दिस नो ऑप्शन इन दैट। तो हमारे पास वो फैसिलिटी लेने से हम 90 ईयर्स पेशेंट्स को भी हम इधर जर्मनटन में हम ऑपरेट कर सक रहे सेफली। तो दिस इज सपोर्टेड बाय मल्टी स्पेशलिटी सर्विसेज। विदाउट दैट आई कैन नॉट डू एनी ऑर्थोपेडिक केस ऑल्सो। तो ये कॉम्प्रहेंसिव केयर होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके प्रोटोकॉल्स होना है। तो वी आर हैविंग NABH प्रोटोकॉल्स हियर फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट। हमारे पास स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड प्रोटोकॉल्स है, जिसमें हम पूरे सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल से वर्क करते हैं। नर्सिंग केयर, ऑर्थोपेडिक केयर, मेडिकल केयर मेडिकल डायलिसिस, एंडोस्कोपी पूरे है यहाँ पे जर्मनटन में। इवन बाईपास वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट सून। तो एक कॉम्प्रहेंसिव केयर की फैसिलिटी है। और हमारा जैसा ग्रोथ है मेरा, इसको तो पेशेंट्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस मैं पहले हॉस्पिटल में करा मेरी जर्मन एक्सपीरियंस से, ये केसेस के रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि द पेशेंट्स आर एबल टू वॉक। उनका वर्ड ऑफ माउथ से दे सेंड लॉट ऑफ पेशेंट्स टू मी। और कई पेशेंट बाहर से भी आते हैं मेरे पास, दे उनके बयान भी है, टेस्टिमोनियल्स है। तो वो लोग जो है दे आर वेरी हैप्पी। अभी आपको रिसेंटली मैं यहाँ पे जद्दा से एक साहब करा लिए थे नी रिप्लेसमेंट, और उनको कई लोग बोले थे कि दिस इज़ नी रिप्लेसमेंट में कई कॉम्प्लिकेशन है, आप नहीं चल सकते, वो मिसकंसेप्शन है। नी रिप्लेसमेंट नहीं होता। नी को जो है ओनली कवरिंग बदलते हैं रोबोटिक से। ये जो केस था वहाँ से आया, तो 5 डेज में ही वॉज एबल टू वॉक, एंड ये 5 डेज में वॉक करने से नाउ ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड कई पेशेंट्स मेरे को बाहर से भेजाते, ऐसे इंसिडेंट्स है कि लॉट ऑफ पेशेंट्स व्हेन दे गेट गुड रिजल्ट्स, वो लोग ही कई पेशेंट्स भेजते मेरे पास। तो दैट इज़ वेयर जर्मनटन का ग्रोथ है मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। कि आप कोई पेशेंट को अच्छा रिजल्ट है, वो सेटिस्फाइड है मेरे से, तो वो लोग ही खुद जो है कई पेशेंट्स को भेज सकते हैं। तो मेरा मोटो वही है कि बेस्ट रिजल्ट देना है उनको, कामयाबी से सर्जरी करो या नॉन ऑपरेटिव मेथड्स भी कामयाबी से करो। दैट इज़ वेयर लाइफ लॉन्ग पेशेंट जो है आपका हो जाता है, फील्स लाइक योर फैमिली, राइट। तो ये ट्रस्ट फैक्टर और टेक्नोलॉजी फैक्टर से जो जर्मनटन को ऊपर लाया, तो दैट इज़ द जर्नी वी आर स्टिल गोइंग। दैट्स वेरी नाइस, बिकॉज बचपन से हम ये सुनते आते हैं कि डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच का जो एक रिलेशनशिप है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट डॉक्टर एंड पेशेंट, इट्स लाइक अ पेशेंट कम्प्लीटली इज डिपेंडेंट ऑन अ डॉक्टर। कई सारे हॉस्पिटल जैसे हैं जो कमर्शियल बेसिस पर काम करते हैं, बट यू मैंशन दैट यू जर्मनटन हॉस्पिटल इज़ द वन दैट फॉलोज द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, लाइक पेशेंट को रूम से लेकर नीचे पूरा हर चीज़ तक गाइड करना एंड हर चीज़ प्रोटोकॉल्स के थ्रू करना। दिस इज़ समथिंग रियली ग्रेट, आई मस्ट से, दैट अ पेशेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ डॉक्टर एंड यू बीइंग दैन एक्सपर्ट डॉक्टर। या आपने कभी ऐसे नोटिस किया है कि किसी पेशेंट को आपने ऑपरेट किया एंड आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस या रुकावट थे जहाँ पर यू झट से एक रास्ता मिल गया आपको कि अरे यार ये इतना मुश्किल लग रहा था बट अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया? ऐसे कुछ सिनेरियोज है आपकी लाइफ में? जैसे आपने कहा, बगैर वेल विशर, बगैर दुआ के ग्रोथ नहीं होता। तो अनलेस विदाउट दैट वी कैन नॉट ग्रो, ठीक है। तो डॉक्टर एज सच, डॉक्टर अगर कोई अभी स्टूडेंट डॉक्टर चूज करना चाह रहे प्रोफेशन,
तो मेरी एडवाइस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू बी कमिटेड टू बिकम ए डॉक्टर। आपको उसमें लाइकिंग होना है, डॉक्टर बनना है। वो पैसे के लिए नहीं है डॉक्टर प्रोफेशन, पैसा आपको बाद की चीज़ है, जैसे सेकेंडरी। बट डॉक्टर प्रोफेशन जो है, यू शुड हैव दैट पैशन। और एक डॉक्टर को बहुत पेशेंस, एम्पैथी होना ज़रूरी है। इसे नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर। जो आप डॉक्टर को जो रेस्पेक्ट है, एवरीबडी यूज, एवरी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी यूज रेस्पेक्ट, एंड डॉक्टर को भी मेंटेन करना चाहिए। वो डॉक्टर शुड मेंटेन द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट, एंड ऑल्सो डॉक्टर शुड हैव दैट एम्पैथी। आई एम नॉट टेलिंग सिंपैथी, एम्पैथी यानी पेशेंट Usually people get confused with sympathy No, and no, that is empathy. different. Empathy is a different and sympathy is different. Empathy यानी पेशेंट को अपनी फीलिंग, यू अंडरस्टैंड इस प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना। मेरे पास अब थोड़े डॉक्टर्स है, दे जस्ट उनका प्रॉब्लम बता दे के दे, ऐसा नहीं कि ये हो जाता तुम्हारे पैर गिर जाते, ऐसा नहीं है। मेरे पास आए तो मैं ये बोलता हूँ, देखो इसका सोल्यूशन है, ये आपका प्रॉब्लम क्या है मैं उनको पहले बताता हूँ। आई हैव ए बिग टीम। मेरे मेरे ओपी में, ओपी रूम से मेरे को ऑर्थो असिस्टेंट्स हेल्प करते हैं, मेरे फिजियो असिस्टेंट्स हेल्प करते हैं। हम लैपटॉप पे उनको बताते, कमर का कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि पैर गिर जाते, ये ठीक हो जाता है। नहीं, आई एम नेवर प्रो फॉर एनी कि 90% कमर का प्रॉब्लम बगैर सर्जरी के ठीक होता, ठीक है। तो आई एम नॉट कि इसको सर्जरी करना, वो माल प्रैक्टिस है। आई एम टोटली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ माल प्रैक्टिस। तो बेसिकली क्या होता, पेशेंट को जो ट्रस्ट है डॉक्टर पे भी रखना चाहिए, डॉक्टर को भी मेंटेन करना चाहिए वो ट्रस्ट, और उनको पूरा उनका प्रॉब्लम समझाना, और उनको जो है उसको उसका ट्रीटमेंट ऑफर करना है, ठीक है। और उसको टेक्नोलॉजिकली बेस्ट ट्रीटमेंट ऑफर करना, डॉक्टर को अपग्रेड करना पड़ता है। ही हैज़ टू बी ऑन पार इंटरनेशनल। तो इसके साथ देर आर फ्यू कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट समझना चाहिए। अब एग्जाम्पल, आईसीयू पेशेंट वेरी बैड कार्डियक, तो डॉक्टर पूरा कोशिश कर सकता है, अल्टीमेटली वो लामिया के हाथ में है। ऐसा ही अब मेरे पास हाईली कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर आता है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो मैं पूरी कोशिश करके जुड़ाने की कोशिश करता हूँ। तो पेशेंट्स को ये भी अंडरस्टैंड करना है कि ये चीज़ है। और जैसा प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कॉस्ट को एक स्टैंडर्डाइज करें, ठीक है। इसमें नो डाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर हैविंग दैट एक्सपेंसेस, बट उनको जो है एक स्टैंडर्डाइज जो है प्रोटोकॉल से चलना चाहिए। जैसा इम्प्लांट कॉस्ट है, आप नी रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स हम यूज़ करते हैं या अच्छे क्वालिटी के टाइटेनियम इम्प्लांट यूज़ करते हैं, डेफिनेटली कॉस्टली है। तो अभी कोई पेशेंट्स को हम यूज़ करना चाह रहे, बिकॉज प्राइवेट हॉस्पिटल्स डोंट हैव एक्सटर्नल फंडिंग और एनी, वी डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फंडिंग, वी हैव टू सपोर्ट। ये कॉस्ट हम पेशेंट को बताते, आपका इम्प्लांट का कॉस्ट इतना है, सपोज नी इम्प्लांट हो रहा है इसका 80-90,000 है, या फोर आर्म फ्रैक्चर एक प्लेट डाल रहे उसका कॉस्ट 70-80 है, तो आपका सर्जरी कॉस्ट फार्मेसी वगैरह मिला के 1-1-2, हॉस्पिटल रूम रेंट्स इतना होते 1.2 M जो भी है। अब नी रिप्लेसमेंट का एक कॉस्ट है, तो ये इम्प्लांट का कॉस्ट जो रहता है ये हम बहुत फेयर रखें इधर। वी इवन गिव बार कोड्स, उसका बिल जीएसटी बिल तक देते हैं हम। तो पेशेंट्स को कभी हो लगता कि ये कॉस्टली है, मगर आपका जो लाइफ ऑफ इम्प्लांट पे डिपेंड रहता है। आप जैसा सेरामिक्स हिप्स हम डाल रहे हैं, सेरामिक की लाइफ मेटल से ज़्यादा है, मगर सेरामिक हिप जो है आपको 40-50 ईयर्स लाइफ कर सकता। तो अगर आपको उसको थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता, बट दैट इज़ व्हाट हम हॉस्पिटल हैज़ टू परचेस। मेरे को अब ऐसा आर्थ्रोस्कोपी इम्प्लांट्स है, ACL PCL, तो इसमें क्या होता है, द कॉस्ट हैज़ टू बी वेरी फेयरली एक्सप्लेन टू द पेशेंट। वो भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपको क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन दैट आपका ऐसा माल प्रैक्टिस नहीं करना है। नहीं, अब हमारे पास आईसीयू में अगर पेशेंट को हम जितना जल्दी हो सके वी वांट टू शिफ्ट इनटू द रूम, ऐसा नहीं कि उसको प्रोलॉन्ग्ड आईसीयू स्टे करके बिल्स लेना है। दैट इज आई एम वी आर टोटली अगेंस्ट दैट। नॉट ओनली मी, मेरी टीम, मेडिकल डायरेक्टर, आईसीयू हेड्स और जो भी हमारे सीनियर डॉक्टर्स है दे आर ऑलवेज वी आर वेरी फेयर जर्मनटन में। वी आर अगेंस्ट टोटली माल प्रैक्टिस। I don't think they might be, there are instances of some doctors doing malpractice, but 80-90% doctor don't want to do harm to the patient. They want to do good only, right? So they want to do ethical practice. So some of the hospital, maybe, I am not telling that, हो सकता, but I am against that. But इसके लिए there should be standardized protocols रहना चाहिए। सेकेंड ओपिनियन भी रख लीजिए। माई एडवाइस इज, इफ़ योर पेशेंट है, आपके कोई रिलेटिव है, यू आर एडमिटिंग योर पेशेंट इन माई हॉस्पिटल, आई गिव देम ऑप्शन टू गो फॉर सेकेंड। आप आपके पहचानत के फैमिली मेम्बर है या डॉक्टर है, आप उनसे रिपोर्ट चेक करवा लीजिए वेदर वी आर डूइंग द करेक्ट ट्रीटमेंट और नॉट। सो दिस इज सम मैकेनिज्म्स जो पेशेंट्स को भी है टू टेक केयर के, पब्लिक को, कि आप अपने फैमिली मेम्बर को कहीं इलाज करा रहे, आप नॉलेजेबल पर्सन से, मोस्ट प्रॉब्ली आप एक फैमिली फिजिशियन रखिए जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आपके फैमिली में एक डॉक्टर को, फिजिशियन को आप रख लीजिए परमानेंटली, जो आपको कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, उनका ओपिनियन लो आप। I think that's the true definition of a doctor, that every doctor must understand, every patient must understand कि डॉक्टर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. एंड वेरी लास्टली, सबसे आखिर में, हमारे व्यूअर्स के लिए जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा फॉर द फ्यूचर डॉक्टर्स, फॉर द पीपल हु आर यू नो हैविंग लिटिल फियर ऑफ ट्रस्टिंग विद डॉक्टर्स, अगर उनका कोई पुराना ऐसा एक्सपीरियंस रहा तो व्हाट विल बी दैट वन मैसेज टू एवरीवन? एज फार एज डॉक्टर्स, अब मैं स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ, या जो भी डॉक्टर बनना चाह रहे हैं यंगर जनरेशन, फर्स्ट बी कमिटेड टू द प्रोफेशन. लाइक आपको डॉक्टर फील्ड में इंटरेस्ट हो तो आप इसको चूज़ करिए. उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी आप चूज़ कर रहे हैं उसमें भी आपको इंटरेस्ट है तो फील्ड चूज़ करिए, ठीक है. चाहे आपको उसको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़े, नो प्रॉब्लम, बट आप वही फील्ड जब उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो. अगर कोई इंजीनियर बनना चाह रहे हैं उसको डॉक्टर बना दिए तो हाउ कैन ही बी. सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू बी पर्टिकुलर कि आपको क्या प्रोफेशन चूज़ करना है. एंड यू डू हार्ड वर्क, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज फॉर हार्ड वर्क, ठीक है. एंड कंसिस्टेंसी, ऑलवेज हैव कंसिस्टेंट, ओके. डू गुड टू अदर्स, आपका रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए. See, whatever you are doing good, that carries forward by word of mouth. ऐसा नहीं कि दे में भी some negative comments, अभी मेरे पे भी आते थे नेगेटिव कमेंट्स. पब्लिक कभी डिससेटिस्फाई हो जाती है उनके ट्रीटमेंट से, कमेंट्स डाल देते हैं. वी कैन नॉट स्टॉप दैट. मगर जो ट्रस्ट है दैट इज़ द ग्रोथ से बताता आपके, ठीक है. अगर आप कुछ क्वालिटी दे रहे हैं, आप कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है, ऑटोमेटिकली यू ग्रो. तो आप कमिटेड के डोंट गेट डिस्करेज बाय एनी पीपल लिविंग नेगेटिव ऑन यू. आप पॉजिटिवली हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, choose a proper profession, do hard work, or consistency is very important. Be constant. Well, thank you so much for being here with us in our podcast and sharing this beautiful journey of yours and also Germantown Hospital. So thank you so much for being, and आपकी लाइफस्टाइल से एंड हॉस्पिटल की जर्नी से इतना तो है कि डॉक्टर का एक सही डेफिनेशन आज हमने सीखा, एंड साथ ही साथ पेशेंट का ट्रस्ट एक डॉक्टर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, एंड देयर ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉक्टर नॉट ओनली इन देयर प्रोफेशनल लाइफ बट पर्सनल लाइफ में भी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मायने रखती है, वो भी आपने हमें बताया. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू हफ्सा. सो व्यूअर्स, आज हमारे साथ जुड़े थे जर्मनटन हॉस्पिटल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान सर. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब एक इंसान हिम्मत हार जाता है सिर्फ अपने कुछ छोटी चीज़ों की वजह से, एंड उसको एक हिम्मत बनकर आप जब ठहरते हैं, जैसे डॉक्टर ज़ार ठहर रहे हैं, शायद बहुत बड़ी बात है एक पेशेंट के लिए. एंड आई थिंक एक पेशेंट के लिए डॉक्टर ज़ार सिर्फ एक डॉक्टर नहीं बल्कि उनके लिए एक भगवान के रूप में है, जैसे फिल्म्स में कई बार हम ये देखते हैं. सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ डॉक्टर ज़ार दैट ही हैज़ शेयर विद अस, एंड we'll meet soon with another great personality on our podcast. Till then, see you. Bye-bye.